Okay, Assalamu alaikum everyone, and welcome back to the new video. In today's video, we are going to solve May June 2023 1-2 variant. Right? Let's begin with this paper. Now, in the first question, what does it says? It says that the equation of the curve is dy over dx is equals to 4 divided by x minus 3 whole cube. Now, it says that the curve passes through a point which has a coordinate of 4 comma 5. Find the equation of the curve. You have to find the equation of the curve. Now, in order to find the equation of the curve, firstly, what we are going to do is that this is going to be dy over dx is equals to 4 x minus 3 raised to power minus 3, right? I just shifted this complete bracket to this side. Now what we are going to do is that shifting this dy over here, and 4x minus 3 minus 3 dx is being shifted to this side. Now taking integral on both these sides, so if I take the integral, this is going to become y is equal to 4 into x minus 3 raised to power minus 3 and integral dx. Now we have to integrate this. Let's integrate this. This is going to become y is equal to 4 into x minus 3 raised to power minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1, एंड इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव नीचे मल्टीप्लाई होता है जो कि 1 होगा, और वी हैव टू राइट प्लस सी एज वेल. Right, let's simplify this further. This is going to become y is equal to 4 into x minus 3 raised to power minus 2 divided by minus 2 plus c. Now doing one more step, this and this cancels out, gives us 2. Y is equals to, let's shift this negative to the upper portion, minus 2, and this is going to be x minus 3 minus 2 plus c. Now making the power positive, y is equals to minus 2 divided by x minus 3 raised to power 2 plus c, right? So once we got this, now we know that the coordinate of P, the point which lies on the curve, has a coordinate of 4 comma 5, right? Let's substitute it over here. So if I want to substitute this is going to become 5 is equals to minus 2 divided by आपके पास 4 minus 3 whole square plus c. So this is going to be 5 is equals to minus 2 divided by आपके पास plus c आ जाएगा because we have left with 1 over here. So this is going to be c is equals to 7. So now in order to find the value equation of the curve, this is going to be y is equals to minus 2 divided by x minus 3 whole square plus 7. So that is going to become the answer for us. Right, G? I hope that is clear to everyone. Now, moving towards the next question. Next question, it says that, moving towards question number 2, what does the question number 2 says to us? It says that the coefficient of x raised to power 4 in the expansion of this is p. Okay. Now we have a bracket which is x plus a raised to power 6. For this bracket, the coefficient of x raised to power 4 is p. Right? The coefficient of x square in the expansion of this is q. Given that p plus q is this, you are supposed to find the value of a. Let's do this. Let me write the other one over here as well. And this is ax plus 3 raised to power 4. From here, we have to find the coefficient of x raised to power 4. From here, we have to find the coefficient of x squared. Let's do this. Now, in order to solve this, firstly, let me do this one for you guys. So, we are using the formula NCR a raised to power n minus r, and this is b raised to power r. Keep in mind, one, this is a is for the formula, right? So this is basically my value of a, and this is going to be my value of b, and this is basically my n. Let's substitute it over here. So 6cr, this is going to be x raised to power 6 minus r, b is a raised to power आपके पास क्या होगा, that is going to be r.
Now we have to find the coefficient of x raised to power 4, picking only the x term, which is going to be x raised to power 6 minus r is equals to x raised to power 4. So same basis. So the powers are going to be equal. So r will be equals to 2. Once you get this value of r, place it in this equation. Let's do this. This is going to be pasted over here. So that is going to become 6c2 x raised to power 4, and this is a raised to power 2. So if I use my calculator, 6c2, that is going to give us 15 x raised to power 4 multiplied by a square. So 15a square x raised to power 4. So the coefficient is going to be this, right? He said that the coefficient is represented by p, so I can write safely over here that p is equal to 15a square. So we got the value of p. Moving towards this side, if I move towards this side, this is going to be, again, same formula we are going to use, NCR a raised to power n minus r b raised to power r. So this is going to be 4CR ax raised to power 4 minus r, and this is going to be 3 raised to power r. Picking only the x terms, only x terms. This is the x term. हम a को भी नहीं pick करेंगे. So x raised to power 4 minus r is equals to x square, because we are supposed to find the coefficient of x square now. Same base. So this is going to be 4 minus r is equals to 2. So r is equals to 2 आ जाएगा. So placing it over here, this is going to be 4c2 ax raised to power 2 and 3 raised to power b 2 आ जाएगा. Now 4c2 की वैल्यू अगर हम अपने कैलकुलेटर से देखें तो 54 आता है. A square multiplied by x square multiplied by 9. So 54 times 9. I made a mistake. Let me check it. 4c2 is not 54. 4c2, that is 6. So this is going to be 6. Now 6 times 54, the 9, that is going to be 54 a square x square. Now what you're going to do is that he said that the coefficient of x square is represented by q. So what I can do is that this is going to be q is equal to 54 a square. Right. Now he said in the question that p plus q is equals to 54. So this is going to be 15a square plus 54. Oh, I made a mistake, one more. That is equals to 276. So 54a square is equals to 276. So let's solve this further. This is going to be 15 plus 54, that is going to be 69. A square is equals to 276. So a square will be equals to 276 divided by 69. So a square will be equals to 4, where a will be equals to plus minus 2. That is the answer for us. Right? I hope that is clear to everyone. Moving towards question number 3. In question number 3, it says that in question number 3, it is expressed this in the form of this, where a b are the integer, giving your answer in terms of constant p. Fair enough, we have to give your answer in the terms of p. Now if you look upon this is basically what we get after doing the completing square. तो आए करते हैं 4x square minus 24x plus p, taking 4 common. So x square minus 6x plus p divided by 4.
सिंप्लीफाई दिस फर्दर, राइट? एक्स कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट जी? सो दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस p डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे x के साथ क्या है, दैट इज गोइंग टू बी 6। इसके साथ तीन काम करने हैं, एक इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसका स्क्वायर लेना है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ करना है। सो प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड आई क्लोज द ब्रैकेट, राइट जी? आए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू एक्स स्क्वायर और ये 3 कंबाइन हो जाएगा और ये वाले साइन को एज इट इज नीचे ले आएंगे, माइनस प्लस p डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस फर्दर, divided by 4 and I close the bracket. Now taking the LCM, so this is going to be 4 into x minus 3 whole square, 4 being my LCM plus p minus 36. So अब मैं 4 को जब मल्टीप्लाई करूंगा वो इधर भी होगा और इधर भी. So this is going to be 4 into x minus 3 whole square plus ये 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा. So we are left with this thing. राइट? लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं खत्म हो गया, क्योंकि उसने हमें कहा है इस फॉर्म में हमें आंसर देना है. ये उसने बाहर ही रखा हुआ है, तो ये मेरे पास मेरा स्टेट में आंसर है, राइट जी? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. दिस इज next it says that hence or otherwise find the set of values of p for which this has no real root. Now no real roots means that the discriminant b square minus 4ac will be less than 0, right? No real roots. So now let's solve this. This is going to be 4x square minus 24x plus p equals to 0. So this is going to be, what we are going to do is that this is going to be my a, ये मेरा b है, ये मेरा c है. तो क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 into 4 into p, and that is going to be less than 0. I simply applied the discriminant b square minus 4ac less than 0. Right? Let's simplify this further. So this is going to be minus 24 square, that is going to be, ब्रैकेट डाल के लिखते हैं तब वो पॉजिटिव करेगा उसको. सो दैट इज गोइंग टू बी 576 minus 16p less than 0. So this is going to be minus 16p less than minus 576. नेगेटिव और नेगेटिव को हम कैंसिल ज़रूर कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन हमें इस साइन को फिर रिवर्स भी करना है, ग्रेटर देन 576, right? So this is going to be 16 is greater than 576 divided by 16. तो यहाँ से मेरे पास p is greater than 36 आ जाएगा. That is the answer for us. I hope that is clear to everyone. Moving towards question number 8. In question number 8, what does it says? Question number 8, it says that you have to solve this thing. अब इसके लिए रूल हमारे पास क्या होता है? We have a rule for it. The equation is given to us 8x to power 6 plus 215 x to power 3 minus 27 equals to 0. बेटा इसको सॉल्व करने का रूल ये होता है कि आपके पास जब भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आपने क्या करना है, जब जो भी सेकंड हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड हाईएस्ट पावर, आपने क्या कर देना है, उसको लेट कर देना है u इज इक्वल टू जो भी सेकंड हाईएस्ट पावर है x टू पावर 3, राइट? आइए सॉल्व करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 8 u का स्क्वायर प्लस 215 u minus 27 equals to 0. So this converts this into the quadratic equation. अगर ये quadratic equation बनी है तो अब मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकता हूँ. आइए इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं. तो एक फैक्टर मेरे पास क्या बनेगा, 8u माइनस 1, और दूसरे मेरे पास बनेगा u प्लस 27
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक u की वैल्यू आ जाएगी 1/8 और दूसरी u की वैल्यू आएगी -27। अब ये u की वैल्यू है, मुझे x की निकालनी है, तो ये जो लेट किया था हमने इसको ले आएंगे हम। We are going to copy this and place it over here. So this is going to be, क्या होगा हमारे पास, x raised to power 3 is equal to u, x raised to power 3 is equal to 1/8. So this is going to be x is equals to cube root of 1/8. So x is equals to हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एक आंसर हमारे पास ये है, और प्लस माइनस नहीं डालेंगे क्योंकि हम क्यूब रूट ले रहे हैं, हम अंडर रूट नहीं ले रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक्स रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू यू। दिस इज गोइंग टू बी एक्स रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -27, द अदर आंसर। सो एक्स रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू -27। सो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -27। सो यहाँ से x की दूसरी वैल्यू जो मेरे पास आएगी दैट इज गोइंग टू बी -3। तो ये मेरा सेकेंड आंसर है, एंड बोथ द आंसर्स आर माय फाइनल आंसर्स। Right, Ji. I hope that is clear to everyone. Moving towards question number 5. If I want to solve this question number 5, what does the question says to us? Question number 5, it says that the diagram shows a curve with an equation of this. ठीक है, curve meets the x-axis for find the area of the shaded region. Okay, fair enough, simple question है. Now the point is given, this is 0 and this is 4. हमें ये पता है एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होता है। सो दिस इज इंटेग्रल 10x रेज़ टू पावर 1/2 -5/2 x रेज़ टू पावर 3/2 एंड दिस इज dx, और लिमिट मेरे पास क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी 0 से लेके 4 तक। राइट, सो लेट्स डू दैट। अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो वो मेरे पास कैसे होगा, दिस इज गोइंग टू बी 10x रेज़ टू पावर 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 minus 5/2 x raised to power 3/2 plus 1 divided by भी 3/2 प्लस 1। और याद रखिएगा क्योंकि अब हम लिमिट्स लगा रहे हैं तो प्लस सी नहीं लिखना है, 0 से 4 की स्ट्रेट अवे लिमिट आ जाएगी। राइट, आए फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 10x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय भी 3/2 माइनस 5/2 x रेज़ टू पावर यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय भी 5/2 आएगा, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट 0 से लेके 4 की लिमिट। अब एक चीज़ याद रखिएगा, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बिकम 20x raised to power 3/2 divided by 3 minus 5/2 multiply by 2x raised to power 5/2 divided by 5, 0 से लेके 4 की लिमिट। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, 20x raised to power 3/2 divided by 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा x raised to power 5/2 एंड 0 से लेके 4 की लिमिट। राइट, वंस यू हैव डन दिस, हमें यहाँ तक जब हो गया, अब हमें लिमिट्स को प्लेस करना है। लिमिट्स के लिए क्या होता था, जहां जहां पे x है वहां वहां पे अपर लिमिट आएगी, बीच में माइनस आएगा, ये आ गया। राइट, इसको सिंपली सॉल्व करें अगर हम, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी 64/3 एंड दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर अस। You can simply place it in the calculator as well. Right, Ji? I hope that is clear to everyone. Moving towards question number 6. Let's solve this. If I want to solve question number 6, what does it says? Question number 6. In question number 6, it says that the diagram shows a sector AOB with the center O. Angle AOB is theta radians. OP is equals to AP is equals to X. Show that the arc length AB is equals to 2x theta cos theta. Right? We have to show that the arc length
आर्क लेंथ की अगर हम बात करें ए बी, उसने हमें कहा है आर्क लेंथ हमें ये चीज शो करके दिखानी है उसको, राइट? हाउ कैन वी शो दैट? लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस। अब अगर हम फिगर पे आए, बेटा जो भी सर्कुलर का क्वेश्चन हो ना उस पर फिगर पे फोकस किया करें, फिगर से सॉल्व होना होता है, राइट जी? अगर मुझे सॉल्व करना है इसको तो कैसे सॉल्व होगा ये हमारे पास? अगर मैं गौर से देखूं तो आर्क लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला होता था, दैट वाज एस इज इक्वल टू थीटा आर। मैं इधर लिख देता हूं, राइट? ये यहाँ पे आपके पास थीटा क्या होता है वो ये गिवन है, और रेडियस आपके पास क्योंकि उसने कहा सेंटर ओ है तो ये मेरा रेडियस बनने वाला है, राइट जी? नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस लेंथ? गौर से देखिएगा बेटा, ये वाली लेंथ निकालने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमने वो तरीका यूज करना है जिससे हमारे पास ये आंसर आ सके। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ओवर हियर, जो कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बन जाएगी, राइट? तो ये एंगल है, ये आपके पास एक्स गिवन है, और यहां से लेके यहां तक वाली जो लाइन है वो मेरी क्या बन जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी माई बेस। तो किस फॉर्मूले में आते हैं ये? दे कम्स इन द फॉर्मूला ऑफ cos, सो दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ से मेरे पास cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस का बी रहने देते हैं डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एक्स है, तो बेस आपके पास कितनी आ जाएगी? एक्स cos ऑफ थीटा, राइट? अगर मुझे ओ ए चाहिए पूरी लेंथ, तो मेरे पास ओ ए कैसे बनेगी? दैट इज गोइंग टू बी दिस लेंथ, ये जो बेस हमने निकाली है इसको मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 2x cos ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास ओ ए आ गई। अब मुझे अगर आर्क लेंथ निकालनी है तो वो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। एस इज इक्वल टू थीटा आर वॉज द फॉर्मूला, थीटा आपके पास थीटा की फॉर्म में ही है, रेडियस हमारे पास 2x cos ऑफ थीटा है। तो यहाँ से मेरे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी 2x थीटा cos ऑफ थीटा, एंड दैट इज द आर्क लेंथ AB, एंड दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट जी? नेक्स्ट उसने क्या कहा है? कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन APB इन टर्म्स ऑफ x एंड थीटा। फेयर इनफ। अब यहाँ पे गौर से देखें तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन की अगर हम बात करें तो ये जो मेरे पास सेक्टर है, मैं पिंक से आउटलाइन कर रहा हूँ इसको, ये जो मेरे पास सेक्टर है सारा कुछ अवेलेबल है सेक्टर का, ये सेक्टर का एरिया माइनस ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया, राइट? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन is equals to area of sector minus area of triangle। आइए जी बारी बारी से फाइंड करते हैं, फिगर्स पे चलते हैं। गौर से देखिएगा, अगर मैं फिगर को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? गौर से देखना है आपने। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ फिगर को तो यहाँ पे मेरे पास होगा क्या? दिस इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ द सेक्टर, निकाल देते हैं सबसे पहले, पिंक से ही फाइंड कर रहा हूँ मैं। सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 थीटा आर स्क्वायर वॉज द फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा, आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, थीटा ही है। रेडियस आपके पास कितना गिवन है? दैट इज गोइंग टू बी 2x, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ आर्क थी, ये तो आर्क लेंथ है सॉरी, तो वो आपके पास कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी ये ओ ए विच इज गोइंग टू बी 2x cos ऑफ थीटा, और इसका हमने स्क्वायर भी करना है। तो आए जी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 4x स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब अगर मैं ये 2 और ये 4 को कैंसिल करूं तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 थीटा x स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट? सो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास सेक्टर का एरिया तो निकल आया। रह कौन सा गया? दैट इज वी आर लेफ्ट विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अगर मैं देखूं तो रेड से मैं उसको फाइंड करूंगा। लेट मी शिफ्ट दिस टू डाउन।
ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर तो आ गया, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ सी फॉर्मूला होता था। अब ओ से लेके ए तक वाली लेंथ मेरे पास गिवन है और ये एक्स है। यहां पे क्या आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 2x कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय ये वाला एंगल साइन ऑफ थीटा। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इसको भी कॉपी करके नीचे ले जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एरिया शेडेड रीजन that is going to be sector 2 theta x square cos square theta माइनस आपके पास क्या होगा? x square cos of theta sin of theta। एक वर्किंग स्टेप मैं और कर सकता हूँ और वो मेरे पास क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी कि मैं यहां से x स्क्वायर cos ऑफ थीटा को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 2 थीटा cos of theta minus sin of theta, and that is going to be the answer for us. I hope that is clear to everyone. Okay, moving towards question number 7. Now question number 7, what does it says? It says that by first expanding this, find the three solutions. Now he has mentioned in the question that you should get the three solutions and you have to get the answer from 0 to pi. Keep in mind one thing, we have to give the answer in the radian mode, right? So let's do that. So this is cos of theta plus sine of theta whole square is equal to 1. He said in the question by first expanding this. आइए इसको expand करते हैं। अगर मुझे इसको expand करना है, that is going to be expanded with the identity, so that is going to be cos square of theta plus 2 cos of theta sine of theta plus sine square of theta is equals to 1, right? So this is going to be 2 cos of theta sine of theta plus cos square theta sine square theta is equals to 1. Now if you look upon this, ये मेरे पास आइडेंटिटी पड़ी हुई है, तो इसकी जगह पे स्ट्रेट अवे 1 लिख देते हैं प्लस 2 cos of theta साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, राइट। अब अगर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है, इस 1 को उठा के इधर लेके आता हूँ, 2 cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो 2 cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इधर से आगे कैसे सॉल्व करेंगे? गौर से देखिएगा बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ऑल यू हैव टू डू इज दैट, आप बारी बारी से पकड़ोगे। सबसे पहले 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम, और फिर हम करेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो 2 साइन ऑफ थीटा भी कर सकते हो, 2 cos ऑफ थीटा भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली ये 2 ने उधर जाके डिवाइड हो जाना, 0 हो जाएगा, सो यहाँ पे cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, और यहाँ पे भी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब हमें 3 आंसर्स निकालने हैं, कैसे निकलेंगे? गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0 करूँ, तो वो अपने कैलकुलेटर से अगर हम चेक करें, मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड, cos इनवर्स ऑफ 0, तो वो मेरे पास कितना आंसर आता है? दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 2। तो एक आंसर तो मेरा ये बन गया। उसने कहा है 0 से लेके पाई के अंदर अंदर हमें आंसर देने हैं। अब नो डाउट यहाँ पे पॉजिटिव 0 है, पॉजिटिव 4th क्वाड्रेंट में होता है, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरफ आ जाता हूं मैं, और इधर मेरे पास क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, सो दिस इज गोइंग टू बी थीटा इज इक्वल टू 0।
राइट। तो यहाँ पे कर देते हैं शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स ऑफ जीरो, तो वो आंसर जीरो आता है। ये मेरे पास एक आंसर है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, सो दैट इज गोइंग टू बी पाई माइनस ऑफ जीरो नॉट थीटा जीरो, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस पाई। तो ये मेरा दूसरा आंसर है। तो यहाँ से मेरे पास जो तीन आंसर्स बनने हैं वो क्या बनेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, पाई बाई टू, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी पाई। ये मेरा फाइनल आंसर है, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, उससे हमें कहा क्या है, कहता है हेंस वेरीफाई दैट द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस underlineable statement, only solution of this equation is 0 and pi by 2। हमें ये शो करना है। बेटा याद रखें सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, सॉल्यूशंस आर पॉइंट एट विच ग्राफ cuts the x axis। तो उस पे जो इक्वेशन होती है पूरी इक्वेशन दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी, राइट। अब पॉइंट ये है, सबसे पहले हमने करना क्या है, दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन आ जाएगा। सबसे पहले इस वन को उठा के इधर लेके जाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, राइट। हमें ये चीज शो करनी है कि ये इक्वेशन जीरो होती है इन दो वैल्यूज पे, एक जीरो पे और एक पाई बाय टू पे। आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, थीटा इज इक्वल टू सबसे पहले जीरो, जहां जहां पे थीटा है वहां वहां पे जीरो प्लेस करते हैं, कॉस ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास बनेगा क्या, आई जी मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड, कॉस ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ जीरो, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू पहले चेक करते हैं, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू वो हमारे पास कितनी आती है, दैट इज गोइंग टू बी वन, प्लस साइन ऑफ जीरो की वैल्यू चेक करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी जीरो माइनस वन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी गिविंग अस जीरो। तो ये आपके पास शो हो गया। दूसरा, थीटा की वैल्यू आपने क्या प्लेस कर देनी है, थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई बाय टू भी है, तो पाई बाय टू को भी प्लेस कर लेते हैं, जहां जहां इक्वेशन है प्लस साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पे मेरे पास कॉस ऑफ, शिफ्ट दबा के फ्रैक्शन लेके आते हैं, कॉस ऑफ फ्रैक्शन पाई डिवाइडेड बाय टू, तो वो मेरे पास क्या आता है, दैट इज गोइंग टू बी जीरो, प्लस साइन पाई बाय टू मेरे पास कितना होता है, वन होता है, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये और ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तो ये मेरे पास दूसरा शो हो गया, right, so that is being shown over here। I hope that is clear to everyone। Moving towards the b part, b part में वो क्या कहता है, prove the identity। Let's prove it। This is going to be sin of theta ये गिवन है हमें, राइट। सिंपल सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आए अपना एलसीएम बनाते हैं। क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेट अवे एलसीएम पे चलते हैं, दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, राइट। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ऑफ थीटा विल बी मल्टीप्लाइड विद प्लस कॉस ऑफ थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, राइट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी, ये साइन थीटा इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी, सो दैट इज गोइंग टू बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये वन इधर से इधर फिर इधर एंड देन इधर, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे वाला जो है इसको भी ओपन कर लेते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा cos theta minus sine square of theta. Now this and this cancels out, this and this cancels out. अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो थोड़ी सी वर्किंग स्टेप और हो सकती है, दैट इज गोइंग टू बी cos of theta प्लस sin of theta माइनस cos square theta माइनस sin square theta डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी cos square theta माइनस sin square theta. राइट जी। हमें जो बेटा देखा करें, जो भी चीज आपको प्रूफ करनी हो ना, हर स्टेप पे रुक के ये चीज प्रूफ किया देखा करें। हमने यहाँ पे देख लेते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस वाली टर्म नहीं है तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो और से देखिएगा क्या करूंगा मैं, कॉस की जगह पे मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा डिनोमिनेटर में, और कॉस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, -1 को मैं कॉमन ले रहा हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये पूरा मेरे पास कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा -1 डिवाइडेड बाय आपके पास 1 माइनस, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, 1 minus 2 sine square theta, and this has been proved over here. Right, G? I hope that is clear to everyone. Now the point is moving towards the next part of it. नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं जाता हूँ तो नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें कहा क्या है, नेक्स्ट पार्ट में वो हमें कहता है यूजिंग योर आंसर इन A2 एंड B सॉल्व दिस इक्वेशन। अब बेटा एक चीज देखा करें, जो आपसे पिछले पार्ट में उसने इक्वेशन प्रूफ करवाई होती है ना, नेक्स्ट पार्ट में वो लाजमी यूज करवाता है। हम पिछले पार्ट में ये वाली इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन थी उसको ये चीज बना के आए, राइट। अब आपने कुछ भी नहीं करना, इस वाली इक्वेशन की जगह पे, इस इक्वेशन की जगह पे मैं इसकी ये जो प्रूफ्ड वाली इक्वेशन है वो प्लेस कर रहा हूँ, cos theta plus sin theta -1 divided by 1 minus 2 sin square theta is equals to 2 cos theta plus sin theta -1, राइट। ये हमने कर दिया। अभी इसको फर्दर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, उसने कहा यूज योर आंसर टू A2, गौर से देखिएगा A2 एंड B। अच्छा हमने A2 यूज, ये जो B वाला पार्ट है ये हमने यूज कर लिया, ठीक है, हमने वो इस इक्वेशन की जगह पे प्लेस कर दिया। अब A2 चाहिए। अब A2 में हम क्या शो करके आए थे, A2 पे अगर मैं जाऊं तो उसने हमसे शो करवाया था कि भाई ये शो करो कि आपके पास 0 और π/2 जो है वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं, एक उसने हमसे शो करवाया π/2 और दूसरा उसने हमसे शो करवाया 0। वो इस, ये दोनों जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशंस बेसिकली क्या होते हैं कि इस इक्वेशन की जगह पे मैं इनको प्लेस कर सकता हूं, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये वाली जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन हम छोड़ करके आए थे, और ये इक्वेशन मेरे पास दो जगह पे, एक जगह पे यहाँ पे, लेट मी हाईलाइट इट, वहां से ज्यादा क्लियर होगा, एक यहाँ पे पड़ी हुई है और एक यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल, वैसे तो अगर देखा जाए ये ना का होता तो मैं इन दोनों इक्वेशन को स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट कर देता, लेकिन उसने थोड़ा सा ट्रिक आउट किया, उसने कहा ये वाले आंसर्स को यूज करो। तो मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशंस की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, एक जगह पे लिखूंगा π/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू π/2 आ जाएगा, राइट। और दूसरा हमने 0 को शो किया था तो वो भी प्लेस कर देते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 0। ये मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे। आए सॉल्व करते हैं, क्या होगा हमारे पास, ये π/2 और π/2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास 0 पे चली जाएगी, तो इधर से तो हमारे पास कुछ होना नहीं है, इधर से सॉल्विंग करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस इक्वेशन को उठा के उधर मल्टीप्लाई करते हैं,
2 into 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 इज इक्वल्स टू 2 - 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर है जी। तो अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहता हूं तो वहां से मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी, इस 2 को उठा के उधर लेके जाते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी 1 - 2 इज इक्वल टू -4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, -1 इज इक्वल टू -4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अगर मैं इधर से फर्दर सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले ये माइनस और माइनस में कैंसिल कर दूंगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/4, सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू √1/4, दैट इज गोइंग टू बी +(-1/2). लेकिन दिस इज नॉट द आंसर येट, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट दिस इज गोइंग टू बी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। सो कैलकुलेटर को पकड़ते हैं, शिफ्ट दबा के साइन 0.5 विच इज गोइंग टू बी थीटा इज इक्वल टू π/6। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आया हमारे पास, राइट तो अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर π/6 है तो हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट्स के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है। अच्छा पहले लिमिट को चेक कर लेते हैं। लिमिट मेरे पास 0 से लेके पाई है, तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड में, तो दैट इज गोइंग टू बी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, सो दैट इज गोइंग टू बी 5π/6। तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, राइट लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 भी आया था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, सो दिस इज गोइंग टू बी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, तो यहाँ से एक आंसर 0 आ जाएगा और दूसरा दूसरा आपके पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी π/2। तो 2 आंसर्स हमारे पास नहीं आने, 4 आंसर्स हमारे पास आएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास π/6 है, देन वी हैव 5π/6, देन वी हैव 0, देन वी हैव π/2। तो ये हमारे पास सारे आंसर्स बन गए, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो उसने हमें कहा ये है, कहता है द ग्राफ शोज y इज इक्वल टू f of x वेयर द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस। ओके, कहता है ऑन अ स्केच ऑफ ऑन द डायग्राम अबव स्केच y इज इक्वल टू f इनवर्स। ओके, एक चीज याद रखा करें, f इनवर्स जो होता है दैट इज द रिफ्लेक्शन of f of x in the line y is equals to x। जो y is equals to x वाली लाइन होती है ना, उसमें ये रिफ्लेक्शन होती है, राइट। तो सबसे पहले y is equals to x की लाइन हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास 0 पे 0, इधर पाई पे ये पाई आ गई, 3π/2 पे ये आ गई और 2π पे ये 2π आ गई। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूँ तो दिस इज द लाइन, ये मेरी y इज इक्वल टू x की लाइन है। हमें जो ड्रॉ करना है वो हमारे पास क्या होता था, हमें इसकी रिफ्लेक्शन f इनवर्स की करनी है। अगर आप ओ लेवल्स को रिकॉल करो तो y इज इक्वल टू x की लाइन में रिफ्लेक्शन अगर करनी है, y इज इक्वल टू x की लाइन में अगर हमें रिफ्लेक्शन करनी हो ना बेटा, तो इसके लिए हम एक रूल बताते होते थे कि अगर आपके पास a का कोऑर्डिनेट x, y है तो a डैश क्या बन जाएगा, y, x। स्वैप कर दिया करें कोऑर्डिनेट्स को, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, राइट बहुत इजी हो जाता है। आए जी, ये देखें, ये जो है ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये आपके पास पड़ा हुआ है पाई से थोड़ा सा नीचे है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये सॉरी y का कोऑर्डिनेट है, ये इधर जाके x का बन जाएगा और मैं भी पाई से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट मार्क कर दूंगा। ठीक होगी बात। अच्छा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये मेरे पास क्या है, 2π कॉमा यहाँ पे वैल्यू है कोई, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास कितनी बनती है, ये दैट्स 3π/2 से थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। तो इसकी ये आपके पास y की वैल्यू है, तो हमने क्या कर देना है, कोऑर्डिनेट्स को स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे 2π है, अब x की ये x की 2π पे पड़ा हुआ है, ये बन जाएगा y का 2π, इधर चला गया पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, 3π/2 से
थोड़ा सा नीचे रहना है, राइट। तो थोड़ा सा नीचे हमारे पास किधर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी, सॉरी 3 पाई बाय 2 से थोड़ा सा ऊपर आना है हमने, तो वो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो ऑल आई हैव टू डू इज दैट, ये वाला पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, ये 3 पॉइंट्स हैं, सिंपली हम ज्वाइन कर देंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। दिस इज द, आई एम, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन गलत है, that is going to be the answer for us. So this is f inverse of x. Right जी? Okay. Next it says that find the expression for f inverse. आइए ये भी कर लेते हैं। f inverse का हमें निकालना है, तो सबसे पहले मैं अपना f of x लिख रहा हूँ, राइट। सो अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट f of x is equals to y। सो अब मेरे पास बनेगा क्या, आइए सॉल्व करते हैं। y minus 3 divided by 2 is equals to sine of 1 over 4x, राइट जी। तो अब अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ से मेरे पास साइन जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स। तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये बन जाएगा, राइट। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इनवर्स y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो जहाँ तक इनवर्स की बात है वो मेरा निकल आया हुआ है, लेकिन वो y की फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखना है f इनवर्स ऑफ x, 4 साइन इनवर्स x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। So that is the answer for us. Right जी? Okay. Now for the next one, next moving towards the next part for this one, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊं तो नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें कहा क्या है, गौर से देखिएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें सी पार्ट में क्या कहा है, कहता है द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर दिस। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पिछला जो उसने एफ ऑफ एक्स ड्रॉ किया हुआ है वो 0 से लेके 2 पाई पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे अब हमें उसने कहा है कि इसको -2 पाई से 2 पाई पे ड्रॉ करो। कहता है स्केच कंप्लीट द स्केच ऑफ दिस अबव एंड एक्सप्लेन वेदर द फंक्शन जी हैज एन इनवर्स, राइट। आपसे वो पूछ रहा है कि भाई इसका इनवर्स है, सबसे पहले तो ये भी बताना है हमें और इसको कंप्लीट भी करना है। तो आइए जी इसको कंप्लीट भी कर देते हैं और बताते भी हैं कि भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले अगर इसको मुझे कंप्लीट करना है तो वो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, जितना ग्राफ आपका 0 से लेके पॉजिटिव 2 पाई वाली साइड पे है उतना ही ग्राफ एग्जैक्ट रेप्लिका आपने इधर भी ड्रॉ कर देना है ऑन अ 0 to -2 पाई वाली साइड पे भी, राइट। लेकिन इसको रिफ्लेक्शन नहीं करनी। जैसे हमारे पास अगर हम देखें ना तो साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ चल रहा होता है तो वो हमारे पास साइन ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो मेरे पास यूं जा रहा होता है, राइट। अगर मैं इसको नेगेटिव साइड पे भी ड्रॉ करूं तो ये इस तरफ इधर भी जा रहा होता है। तो हमने इसको यहाँ से लेके आना है और इसको हमने -2, ये जो -2 पाया है यहाँ तक लेके जाना है और हमने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, दैट इज गोइंग टू बी ए ड्रॉइंग फॉर दिस वन, दैट इज गोइंग टू, नो लेट मी इरेज दिस। सो ये मेरे पास इधर आ जाएगा ऑल द वे अराउंड दिस, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। अब इसमें कैसे पता चला कि भाई मुझे इधर से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपने बेटा चेक कर लेना है। ये देखें, ये जो इसकी मीन लाइन है, ये वाली जो मीन लाइन है, यहाँ पे इसको मैं करूँ ड्रॉ, तो जितना इस मीन लाइन से ये ऊपर की तरफ है, इधर ही आपने इतनी मीन लाइन से नीचे की तरफ भी उतना ही ड्रॉ करना है, बिकॉज द एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम।
राइट, दिस इज हाउ वी ड्रॉ। अब अगर हम इसको देखें तो उसने पूछा है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमने यहाँ पे सिंपल सिंपल से कह देना है यस इट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज रीजन भी बताना है हमने, बिकॉज इट इज अ वन या एन वन टू वन फंक्शन, राइट, बिकॉज एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू है, तो ये वन टू वन फंक्शन है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट जी। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट फॉर इट। Now, it says that describe fully a sequence of transformation which can be combined to transform the graph y is equals to sine of x to f of x. Make clearly the order in which the transformations are applied. आपको order भी बताना है बेटा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले उसने कहा है जी आपके पास फंक्शन है y is equals to sine of x। आपको बताना है कि कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इस पे करें, तो ये हमारे पास f of x बन जाएगा, राइट मैं एफ ऑफ एक्स को यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, और ये मैंने किया इसको कॉपी, और इसको मैं ना इधर एंड में लिख रहा हूँ, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, मुझे इसको इधर लेके जाना है, राइट। अब इसके अंदर बेटा सबसे पहले याद रखा करें, जैसे बॉडमैस रूल होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं कि भाई पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लिया करें, तो इसीलिए पहले ब्रैकेट के अंदर हम भी सॉल्व करेंगे, राइट। मैं इसको सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो व्हाट आई कैन डू इज दैट यहाँ पे मेरे पास x है और यहाँ पे मेरे पास 1/4x है, विच मीन्स दैट, गौर से देखिएगा, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको g ऑफ x का नाम दे दूंगा, तो ये लेट मी से दैट दिस इज माय g ऑफ x, या g ऑफ x भी नहीं h ऑफ x करते हैं क्योंकि g ऑफ x फंक्शन में यूज किया गया, राइट। h ऑफ x को मैं कह रहा हूँ साइन ऑफ x है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर बेटा देखा करें ये जो ऑर्डर होता है ना इसमें बॉडमैस रूल फॉलो होना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को डिस्क्राइब करते होते हैं फिर बाहर जाते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या बनेगा 1/4 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इस h ऑफ x के इधर 1/4x कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा साइन ऑफ, जहां जहां x है वो मुझे लिखना पड़ेगा 1/4x। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है वो x की डायरेक्शन में होती है, तो पहली हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखी, पहली हम ट्रांसफॉर्मेशन कह देंगे कि भाई ये आपके पास स्ट्रेच है अलोंग x एक्सिस, और स्केल फैक्टर क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी स्केल फैक्टर ऑफ 4, क्योंकि आपके पास याद रखा करें आपके पास x एक्सिस में हर काम उल्टा होता है, 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्केल फैक्टर 4 बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम भी क्या करते हैं इस h के बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरफ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर मैं बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्ट्रेच, राइट। तो यहाँ पे भी ये स्ट्रेच है लेकिन अब ये y एक्सिस की डायरेक्शन में, और स्केल फैक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक हो गया। अब आगे ये क्या हो रहा है +3, तो अगर मैं यहाँ पे +3 करता हूँ इधर भी, तो यहाँ पे 2h ऑफ 1/4x आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 3 + 2 साइन ऑफ 1/4x। अब अगर आप कोई भी चीज प्लस या माइनस करते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाती है, दैट इज बेसिकली नोन एज योर ट्रांसलेशन, और क्योंकि एफ ऑफ एक्स के ब्रैकेट के बाहर हो रही है तो वो वाई ट्रांसलेशन होती है, तो हम ऊपर 0 डाल देते हैं और नीचे हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर अस, राइट। सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। Okay, now the question number 9 is a very important question. Let's solve this. अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें बेटा, गौर से देखिएगा, उसने हमें कहा क्या है, उसने हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा ये है, कहता है द सेकंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16, यहीं पे रुक जाते हैं, सेकंड टर्म t of 2 is equals to 16, सम ऑफ इन्फिनिटी 100 है, राइट। टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, t of n is equals to ar raised to power n minus 1, so this is going to be ar2 minus 1 is equals to 16, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ar is equals to 16, तो एक तो यहाँ पे बन गया।
अब उसने यहाँ पे कहा है फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट टर्म, मींस ए की दो पॉसिबल वैल्यूज बननी है, राइट वो हमें उसने कहा है फाइंड करो। हम पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से एक चीज भी हमें एक्सट्रैक्ट आउट करनी है, देयर इज एन इंफॉर्मेशन बीट हिडन ओवर हियर। वो क्या होगी? दैट इज गोइंग टू बी, सबसे पहले सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ, सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है, 100 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ से अगर मैं ए को सब्जेक्ट बनाऊं तो दैट इज गोइंग टू बी 100 इंटू 1 माइनस आर। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आपको कुछ भी नहीं करना, ए सब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको पिक करके इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास? 100 इंटू 1 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 60। ठीक हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा? 100 इंटू आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो दिस इज 100 आर माइनस 100 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर मैं इसको यहाँ से फर्दर सॉल्व करूँ तो दैट इज गोइंग टू बी 100 आर का स्क्वायर माइनस 100 आर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r की जो दो वैल्यूज बनती हैं वो आपके पास 4/5 है, और दूसरी r की जो आपके पास वैल्यू आती है दैट इज 1/5। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ r, आपको a भी निकालना था, आपको a ही निकालना है बेसिकली। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? दैट इज गोइंग टू बी a इज इक्वल टू 100 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू पहले 1/5 ले रहा हूं मैं, तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी 80। और दूसरी आपके पास क्या होगी? 100 इंटू 1 माइनस यहाँ पे 4/5 ले रहा हूं मैं, तो यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी 20, राइट। जब r मेरा ये, अब यहां पे एक चीज समझ लें बेटा, उसने हमें यहाँ पे टू पॉसिबल वैल्यूज निकलवाई हैं, तो कीप इन माइंड वन थिंग, यहां से मैं एक चीज एक्सट्रैक्ट आउट करके नेक्स्ट पार्ट पे चलूंगा। देयर आर, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, देयर आर टू डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। एक चीज यहां से ही अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है इसमें दो डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस चल रही हैं, राइट। ये देखें बेटा, एक ए की वैल्यू 20 है, एक 80 है, तो भाई, और एक आर की वैल्यू आपके पास 1/5 है, एक आर की वैल्यू 4/5 है, तो ये दो अलग अलग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है, राइट। तो इसलिए याद रखिएगा ये दो अलग अलग सीक्वेंसेस चल रहे हैं और इनको सेपरेटली ही डील करना है हमने। दैट इज द मेन क्लेंच इन दिस क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या कहता है? शो दैट द nth टर्म ऑफ वन ऑफ द टू पॉसिबल ज्योमेट्रिक, अब देखें यहां पे उसने वही बात कह दी, उसने यहां पे ये कहा है कि वन ऑफ द टू पॉसिबल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर n-2 मल्टीप्लाई बाय द nth टर्म ऑफ अदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जो मैंने आपको कहा है कि भाई बेसिकली ना बच्चों ने क्वेश्चन पिछले वाले को सही तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं किया, इसलिए वो नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट बी पार्ट पे कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पे फर्स्ट में ही हमें इंटरप्रिटेट करना है कि भाई ये दो डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहे हैं। तो आए जी, गौर से देखिएगा, पहला जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जिसमें आर की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? दैट वाज 4/5। तो मेरा ए कितना आया था? दैट वाज 20। दूसरा मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है जिसमें आर की वैल्यू 1/5 है, तो ए वाज इक्वल्स टू 80, राइट। इन दोनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम nth टर्म निकाल लेते हैं। क्या बनेगी? टी ऑफ n इज इक्वल्स टू ए कितना हमारे पास? दैट इज 20 इनटू आपके पास क्या होता था? r विच वाज 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n-1। मुझे नहीं पता n की वैल्यू, मैंने एज इट इज लिख दिया, राइट। इधर आते हैं, इसकी भी निकाल लेते हैं। t ऑफ n इज इक्वल टू 80 इंटू 1/5 रेज टू पावर n-1। Now what he is trying to say, वो हमें कहना ये चाह रहा है कि भाई इनमें से किसी भी एक टर्म की nth टर्म के फॉर्मूले को अगर 4 रेज टू पावर n-2 से मल्टीप्लाई करें तो वो दूसरे टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला बन सकता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। बेसिकली ये जो मेरे पास आए हैं ये इसका nth टर्म फॉर्मूला है,
और ये इधर वाली का nth टर्म फॉर्मूला, राइट वो कहना ये चाह रहा है कि इनमें से किसी एक के साथ हम 4 n माइनस टू मल्टीप्लाई करें तो दूसरे वाली जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू शो, ये हमें शो करना है. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. आई कैसे शो करना है गौर से देखिएगा. लेट मी पिक दिस वन, मैं इसको पिक कर रहा हूं. 20 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n माइनस वन. मुझे ये बताना है कि भाई इस वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है, इसको 4 रेज टू पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला फॉर्मूला बनता है. दिस इज व्हाट यू हैव टू शो, हमें ये चीज बनानी है. गौर से देखिएगा कैसे करना है हमने. नाउ दिस इज अ ए स्टार क्वेश्चन बाय द वे, राइट. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n माइनस वन है. तो मैं अगर चाहूँ ये जो 4 है इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकालना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ. क्या होगा, मुझे इस 4 को ये वाली पावर देनी पड़ेगी. आए दे देते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय, इस 4 को मैंने बाहर निकाला 4 रेज टू पावर n माइनस वन. हमने पढ़ा हुआ है कि भाई ब्रैकेट से बाहर जब भी कोई चीज निकालते हैं तो उसको हमने वो वाली पावर देनी होती है जो ब्रैकेट के पास होती है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n माइनस वन और 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n माइनस वन मेरे पास ऑलरेडी मिल चुका है मुझे. सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ओके. अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज नोट करता हूं, गौर से सबने बड़ी केयरफुली इस पॉइंट को चेक करना है. ठीक है, सारों ने बड़े केयरफुली इस पॉइंट को देखना है. हमें यह शो करना है कि हमारे पास इस टर्म को, ये वाले फॉर्मूले को 4 रेज टू पावर n माइनस टू से जब मल्टीप्लाई करें तो वो वाला बनता है. गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 लिखूं तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. 1 इज 1, राइट. लेकिन इस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? लेट मी रीराइट द इक्वेशन. 20 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n माइनस वन. अब इस 1 की जगह पे व्हाट आई कैन राइट इज 4 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकता हूं मैं. सारे एग्री करेंगे? ओके. गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं इस 4 के पास कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर 1 है. ये यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ पे -1 लिखा जा सकता है. दिस 4 एंड दिस 20 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, तो क्या आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर n -1 दैट इज गोइंग टू बिकम -2. और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 5 n -1. तो जहां से अगर मैं फर्दर इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 रेज टू पावर n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n माइनस वन. तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज नोट करूं तो क्या हमारे पास ये चीज नहीं बन गई कि 4 रेज टू पावर n माइनस टू इज बीन मल्टीप्लाइड विद व्हाट? यहाँ पे अगर हम देखें तो 80 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n माइनस टू. तो यही तो हमें शो करना है कि भाई ये वाला जो सीक्वेंस है हम इसको जब 4 रेज टू पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरा सीक्वेंस बन रहा है. दिस इज बीन शोन ओवर हियर. Is that clear with everyone? I hope that is clear to you guys. Okay. Moving towards question number 10. What does it says? Question number 10 says that the equation of the circle is this. Okay. This is the equation of circle given to us. The line y is equals to 1 over 2x plus 6 is tangent. यहीं पे रुक जाते हैं. टेंजेंट लिखा हुआ है. अगर टेंजेंट है तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू 0, राइट. एट अ पॉइंट P कहता है शो दैट वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज 4 एंड फाइंड द अदर पॉसिबल वैल्यू. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अगर इक्वेशन को देखें तो हमें हमारी इक्वेशन में y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है. इस इक्वेशन को उठा के इधर प्लेस करना है. ठीक है जी, आए प्लेस करते हैं. y की जगह पे क्या आएगा, -3 एज इट इज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20.
सिंपल सिंपल, आई जस्ट प्लग द वैल्यू। ठीक होगी बात? अच्छा जी, आइए जी आइडेंटिटी लगा के ओपन भी करते हैं। बिफोर आई अप्लाई द आइडेंटिटी एक स्टेप और करते हैं, फिर आइडेंटिटी लगा देंगे। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ये आ गया, राइट। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर, राइट जी। आए सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, सारी टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, माइनस 2ax प्लस 3x प्लस ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 20, यहीं पे लिख देते हैं 11 आता है विद अ नेगेटिव एज वेल। तो अब मेरे पास क्या आएगा, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे मेरे पास प्लस x को जरा मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 2a प्लस 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। अब उसने कहा है टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे डिस्क्रिमिनेंट हम ऑलरेडी लिख के आए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू 0। आए प्लेस करते हैं इसको। अच्छा, इसको मैं लिख रहा हूँ 3 माइनस 2 है, एक ही बात होती है, होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे मेरे पास क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 4, ए स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0, राइट। सिंप्लीफाई दिस फर्दर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इसको आइडेंटिटी लगा के ओपन करना है। सो दिस इज 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a का स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 55 इक्वल्स टू 0, राइट। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 9 माइनस 12a, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 55 इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 64 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करता हूँ तो एक मेरे पास a माइनस 4 आ जाएगा, दूसरा मेरे पास a प्लस 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा और दूसरा a इज इक्वल टू आपके पास माइनस 16 आ जाएगा, राइट। तो उसने बताया हुआ था कि जी a इज इक्वल टू 4 आपके पास ऑलरेडी है, हमें दूसरा निकालना था, तो वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी a माइनस 16, दैट इज बिकम्स द आंसर फॉर अस। I hope that is clear to you guys. Okay, G. Moving towards the B part. Now, what does the B part says? गौर से देखिएगा. It says that for a is equals to 4, find the equation of normal to the circle at P. ठीक है. गौर से देखें. सबसे पहले एक सर्कल प्लॉट कर लेते हैं. This is the circle given to us. और इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या थी, उसे हमें बता दिया व्हेन a इज इक्वल टू 4, राइट। हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी 4 उसने हमें बता दिया, ठीक है जी। तो p जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स उसने हमें नहीं बताए हुए, ठीक है। आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, a इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल को पकड़ लेता हूँ, यहां से करते हैं इसको कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं जी पेस्ट। a इज इक्वल टू 4 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में अगर मैं 4 को प्लेस करूं तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से मेरे पास सर्कल के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपके पास कितने आ जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 4 x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो दिस इज गोइंग टू बी 4,3, राइट। अब उससे क्या है, टेंजेंट एट P,
पॉइंट इज मेरे पास टेंजेंट के कोऑर्डिनेट पी के तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो वो भी चाहिए मुझे। वो कैसे निकाल सकता हूं? उसके लिए बेटा दोबारा से वर्किंग नहीं करूंगा मैं। गौर से देखिएगा, आपने ऑलरेडी इक्वेशन बनाई हुई है। ये देखो, ये इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी सारी वर्किंग्स दोबारा करें। हमने इक्वेशन ऑलरेडी बनाई हुई है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं लेके आऊंगा, और उसने कहा है a इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में जहां जहां पे a है वहां वहां पे 4 प्लेस कर देते हैं। एक ही जगह पे a है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो जगह पे। तो अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 प्लेस करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 5x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंटू -2 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। राइट, अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहता हूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 5x² डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5x प्लस क्या आएगा आपके पास, नॉट प्लस, इट इज गोइंग टू बी 16, यस, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू मेरे पास आती है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करके जो मेरे पास x का कोऑर्डिनेट आता है दैट विल बी इक्वल्स टू 2, और जो y कोऑर्डिनेट मुझे मिलता है वो 7 है। तो यहां से मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 2, 7। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है तो x की वैल्यू मिली, उसको किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दे, आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मेरे पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, p के जो कोऑर्डिनेट हैं दैट इज गोइंग टू बी 2, 7। ये मेरा p है। राइट जी। अब अगर मैं यहां पे देखूं, ये मेरे पास लाइन है जिसकी वो बात कर रहे हैं, दिस इज टेंजेंट। इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है तो सबसे पहले रेडियस और टेंजेंट आपके पास क्या होते हैं, जहां पे भी मीट करते हैं दे फॉर्म्स अ 90 डिग्री। तो सबसे पहले अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं इस लाइन का तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4। सो यहां से मेरे पास ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय -2 विच इज गोइंग टू बी -2। राइट, ये इस वाली लाइन का ग्रेडियंट है। ये जो पर्पल वाली लाइन होगी इसका ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल किया। राइट, क्योंकि हमें उसने कहा है नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल टू एट पी, नॉर्मल एट पी निकालना है। तो ये तो टेंजेंट है, नॉर्मल एट पी का यही वाला ग्रेडियंट बन जाएगा विच इज गोइंग टू बी -2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू, याद रखिएगा टेंजेंट का नहीं निकालना है, नॉर्मल एट पी निकालना है। राइट, नॉर्मल एट पी क्या होगा, नॉर्मल एट पी ये वाली लाइन होगी जो कि रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, ये नॉर्मल एट पी है, इसका निकालना है। तो इसका ग्रेडियंट जो है दैट इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे पॉइंट पी मेरे पास कितना है, दैट इज 2, 7। राइट जी, आए इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी y-7 इज इक्वल टू -2x -2 आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी y-7 इज इक्वल टू -2x प्लस 4 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू -2x प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 11, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। राइट, तो ये जो नॉर्मल वाली है इसकी इक्वेशन हमें निकालनी थी, टेंजेंट की उसने नहीं कहा हमें निकालने के लिए। Right, Ji? I hope that is clear to everyone. Moving towards the C part. Okay, for the C part, it says that for A is equals to 4, find the equation of two tangents to the C which are parallel to the normal found in B. Okay, यही वाले फिगर को मैं जरा कॉपी कर रहा हूँ, ये मेरे पास फिगर है, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर। ये मेरे पास आ गया जी नॉर्मल। राइट, अब ये वाला टेंजेंट मैं मिटा देता हूं, नॉर्मल की हमने इक्वेशन निकाली। अब उसने कहा है इस नॉर्मल के पैरेलल दो टेंजेंट्स हैं, आइए जी ड्रॉ करते हैं। ये वाली जो नॉर्मल वाली लाइन है इसके पैरेलल है, तो ये ले जी मैंने नॉर्मल वाली लाइन को ओवरलैप किया और इसके एक इधर कर दिया, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं और इसी के पैरेलल एक इधर है। इन दोनों की हमें इक्वेशन निकालनी है ना। द मेन पॉइंट बेटा इसके अंदर ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो टेंजेंट वाली दोनों लाइंस हैं इन्होंने सर्कल को कहां पे कट किया। मुझे एक चीज पता है, इसका भी ग्रेडियंट -2 होगा,
इसका भी ग्रेडियंट -2 होगा। लेकिन मुझे एक चीज तो पता ही नहीं है कि इसने किन पॉइंट्स पे कट किया, तो सबसे पहले मुझे वो पॉइंट चाहिए, राइट? वो पॉइंट कैसे निकलेगा, गौर से देखिएगा। अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं, दिस लाइन, I can safely say that this is going to be the diameter, और ये आपकी इस वाले के परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो अगर मैं ये पिंक वाली लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं इसका ग्रेडियंट अगर -2 है, तो ये जो पिंक वाली लाइन होगी इसका ग्रेडियंट 1/2 होगा, राइट? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है वो, राइट? और ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, ओरिजिन से, ओरिजिन कह रहा हूं सेंटर से। तो यहां से सबसे पहले ये जो पिंक वाली लाइन है इसकी इक्वेशन मैं निकालता हूं, इसका ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू 1/2, और यहां से क्योंकि ये सेंटर से पास कर रही है, दिस इज गोइंग टू बी 4,3। तो जल्दी से इसकी इक्वेशन निकालते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी y - 3 इज इक्वल्स टू 1/2 x - 4। तो यहां से मेरे पास 2 इंटू वाई -3 इज इक्वल टू x - 4 आ जाएगा। और यहां से अगर मैं इक्वेशन को बनाऊं, तो दिस इज 2y - 6 इज इक्वल टू x - 4, विच इज गोइंग टू गिव अस 2y इज इक्वल टू x + 2, राइट? और अगर मैं y को सब्जेक्ट भी बना लूं, तो x + 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये मेरी y की इक्वेशन आ गई, ठीक है? अब ये वाली जो पिंक वाली लाइन है, ये जहां पे सर्कल को टच कर रही है, वो कोऑर्डिनेट्स है जो कि मुझे चाहिए। मैं इसको दोबारा आउटलाइन कर रहा हूं, ये वाले और ये वाले। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सर्कल की इक्वेशन के साथ इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आइए जी अपनी सर्कल की इक्वेशन लेके आते हैं। ये देखेंगे हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, व्हेन a इज इक्वल टू 4। ये पकड़ा मैंने इसको यहां से, ये किया मैंने इधर से कॉपी। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत लंबी वर्किंग है, एक भी गलती हुई पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा, राइट जी? आइए सॉल्व करते हैं इसको। All I have to do is that this y is to be shifted over here, right? So this is going to be x minus 4 whole square plus x plus 2 divided by 2 minus 3 whole square is equals to 20, राइट? आए इसको जल्दी से सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं, तो दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। क्या बनेगा हमारे पास, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस क्या होगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस 4 होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। तो आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो वो मेरे पास बनेगा क्या, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो दैट इज गोइंग टू बी x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस, इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अगर आप चाहें तो वैसे भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अब जल्दी से इसकी एक्सपेंशन भी कर देते हैं। इसकी अगर मुझे एक्सपेंशन करनी है, तो दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा के ओपन होगा, 8x प्लस 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 minus 2 into x over 2 into 2 plus 4 is equals to 20, राइट? अब अगर मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूं, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, सो दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, राइट जी? अगर मैं इसको यहां से फर्दर सॉल्व करता हूं, तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, ये तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। सो दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 5x स्क्वायर, टेकिंग x कॉमन ले लेते हैं, स्ट्रेट अवे थोड़ी सी वर्किंग बचा लेते हैं। x को अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ, तो 5x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो एक मेरे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और दूसरी मेरे पास क्या आएगी, दैट इज गोइंग टू बी 5x ओवर 4 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 8। ये दो मेरे पास x की वैल्यूज है। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत वर्किंग रहती है। हमने y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, जल्दी से निकालते हैं।
इक्वेशन जो थी हमारे पास उसके अंदर प्लेस कर रहा हूं मैं, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस टू, तो दैट इज गोइंग टू बी 2y इज इक्वल्स टू 0 प्लस टू, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और दिस इज गोइंग टू बी 2y इज इक्वल्स टू 8 प्लस टू, तो y इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5। ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पे आपके टेंजेंट्स ने सर्कल को टच किया है। हमें इक्वेशन निकालनी है, आए निकालते हैं। ग्रेडियंट कितना है हमारे पास, दैट द ग्रेडियंट वाज -2, एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0,1, तो इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी y माइनस 1 इज इक्वल टू -2x माइनस 0, so that is going to give us y minus 1 is equals to -2x, so this is going to be y is equals to -2x plus 1। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके पास ग्रेडियंट -2 ही है, और कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 8,5, x कोऑर्डिनेट 8 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू -2x माइनस 8, so this is going to be y minus 5 is equals to -2x plus 16, तो यहाँ से मेरे पास y is equals to -2x प्लस 21 आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस हैं जहां पे आपका जो दे आर टेंजेंट टू द नॉर्मल फाउंड एट बी एंड दे आर टचिंग द सर्कल बिकॉज दे आर टेंजेंट। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू अस। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, राइट जी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में? क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट y इज इक्वल्स टू, इसको सबसे पहले मैं ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रहा हूं, ये गिवन है। कहता है फाइंड dy ओवर dx, सिंपल डेरिवेटिव करना है। आई dy ओवर dx फाइंड करके देते हैं उसको। क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, पावर क्या होती है, पीछे आके मल्टीप्लाई, k डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4x प्लस 1 रेज टू पावर 1 ओवर 2 माइनस 1, इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होना होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, देन दिस इज गोइंग टू बी -1, और कांस्टेंट नंबर इग्नोर हो जाता है, right? So this and this cancels, gives us 2, so this is dy over dx is equals to 2k into 4x plus 1 raised to power -1 over 2 minus 1. That is the answer for us. Right जी, I hope that is clear to everyone. A part तो हो गया, क्लियर है सबको? मूविंग टूवर्ड्स द बी पार्ट। बी पार्ट में वो क्या कहते हैं, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ के। हमें इन टर्म्स ऑफ के ही आंसर देना है। स्टेशनरी पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं dy ओवर dx दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट? सो ये वाली जो इक्वेशन है इसको पकड़ना है, 0 इज इक्वल टू 2k इंटू 4x प्लस 1 रेज टू पावर -1 ओवर 2 माइनस 1, राइट जी। आए सॉल्व करते हैं इसको। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, 1 को इस तरफ ले आता हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2k इंटू 4x प्लस 1 रेज टू पावर -1 बाई 2, राइट जी। आए सॉल्व करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी 1 इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, 4x प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2। Shifting this towards this side, this is going to be 4x plus 1 raised to power 1 by 2 is equals to 2k। अब अगर 1 over 2 दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4x plus 1 is equals to, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4k का स्क्वायर, तो x is equals to मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 4k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। उससे सिंपल x कोऑर्डिनेट का है, तो यही मेरा आंसर है, राइट? और कुछ हमें निकालना ही नहीं है। फिर उसने हमें नेक्स्ट क्या कहा है, कहता है गिवन दैट k is equal to 10.1 फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट विच टेंजेंट टू द कर्व मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। बेटा याद रखा करें, एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एक्सिस गिवन टू अस, और ये अगर मेरे पास लाइन जा रही है, राइट? तो हम ये कहते हैं इस लाइन का अगर ग्रेडियंट m है, तो अगर मुझे ये थीटा निकालना है, जो थीटा वो वाला जो लाइन आपका एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी,
राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ग्रेडियंट। आप अगर ग्रेडियंट का tan इनवर्स करते हैं तो आपको वो एंगल मिल जाता होता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो ग्रेडियंट है, वो एंगल जो है वो tan इनवर्स ऑफ 2 है। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं थीटा इज इक्वल्स टू, अभी मैंने लिखा है tan इनवर्स ऑफ ग्रेडियंट होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रैकेट में उसने 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आई कैन एक्सट्रैक्ट आउट दैट द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज गोइंग टू बी 2। अगर आप tan इनवर्स ऑफ 2 करोगे तो आपको एंगल भी मिल जाएगा, लेकिन वो चाहिए नहीं हमें। हमें यहाँ से ग्रेडियंट पता चल गया जो कि आपके पास 2 है, और dy ओवर dx सेफली मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ग्रेडियंट को कहते हैं, तो dy ओवर dx विल बी इक्वल टू 2। अब अपनी डेरिवेटिव इक्वेशन पकड़ लेते हैं। ये थी जी हमारी डेरिवेटिव इक्वेशन, dy ओवर dx की इक्वेशन। कॉपी इधर लेके आता हूं मैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। dy ओवर dx की ये इक्वेशन है। आए जी, dy ओवर dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 लिखूंगा मैं, ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी रिटन 2 इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। उसने कहा ये है, कहता है नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, ठीक है, एट अ पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व मेक्स दिस, ठीक है जी। गौर से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट दिस इज गोइंग टू बी, उसने हमें बता दिया k इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 10.5। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10.5 आ जाएगा, इंटू 4x प्लस 1 आएगा रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। आए जी, इसको सॉल्व करके अपनी वैल्यू ऑफ x तो निकालते हैं जल्दी से। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं एंड लेट्स सॉल्व दिस, राइट जी। सो क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 21 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करके जल्दी से अपने x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 3 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 4x प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 4x प्लस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू 7। अब 1 बाई 2 दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, 4x इज इक्वल टू 49 आ गया मेरे पास, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस 4x इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो आपके पास कितना बन जाएगा 48, सो x विल बी इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरे पास x कोऑर्डिनेट तो आ गया, ठीक है। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूंगा मैं, y कोऑर्डिनेट के लिए जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ये वाली जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको पकड़ते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, और इसमें जहां जहां x है वहां वहां पे हम प्लेस कर देंगे। k की भी वैल्यू है हमारे पास y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। आए करते हैं, क्या बनेगा, y इज इक्वल टू k की जगह पे आएगा 10.5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 12 प्लस 1 माइनस 12 प्लस 5, राइट। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 66.5। तो जो नॉर्मल का हमें उसने कहा है, देखें याद रखें, पॉइंट हमारे पास आ चुका हुआ है 12,66.5, ग्रेडियंट एट p पॉइंट पे जो है वो मेरे पास कितना निकला था, दैट वाज 2। तो नॉर्मल का क्या होगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी -1/2, ठीक है। अब सिंपल हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या करेंगे, y माइनस 66.5 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस 12, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इक्वेशन। इसको यहां पे ही छोड़ दें या फर्दर सॉल्व कर दें, इट्स अप टू यू। दिस इज द आंसर फॉर अस। Is that clear with everyone? So this comes to the end of this paper solution. I hope these solutions are clear to you.
I'll be more posting more solutions and the unsolved papers at my channel. Do like and subscribe my channel. Thank you so much.